آئیے میرے ساتھ نکالیے گا متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 7 کی مسز آکاش کے ساتھ مل کر ہم تلاوت کو سنیں گے. اونچی آواز میں بیٹی تلاوت کریں گے. سارے غور سے سنیں, کلام کی طرف ہم توجہ کریں گے. متی کی انجیل اس کا 7واں باب 7 آیت. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو کہ خدا نے آج پھر سے ہمیں کلام کو سننے کا موقع دیا. بڑے خوبصورت پاک الفاظ ہے اور یہ مسیحا کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے پاک الفاظ ہیں. جیزس نے اپنے شاگردوں کو, اپنے ڈسائپلز کو کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, اگر تم مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا. یہ جو الفاظ ہیں یہ دعا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر تم دعا کرو گے تو تم کو دیا جائے گا. کیونکہ دعا کے بغیر ہم دنیا سے تو مانگ سکتے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے روٹی کی ضرورت ہے, مجھے کپڑے کی ضرورت ہے, لیکن خدا سے جب بھی ہم نے مانگنا ہے ہم نے سنجیدگی سے جھکنا ہے اور پریئر کرنی ہے. جب ہم پریئر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس وقت ایمان سے جب ہم مانگتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں دیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی, اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں, دعا نہیں کرتے. 24 گھنٹے گزر گئے, 36 گھنٹے گزر گئے, 1 ویک گزر گیا, 1 ماہ گزر گیا, 2024 گزر گیا, 25 آ چکا ہے, لیکن دعا ابھی تک نہیں کی. بس بڑبڑاتے رہتے ہیں کہ ہمیں ملتا نہیں ہے, ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. جیزس نے اپنے شاگردوں سے کہا, بلکہ انہیں سکھایا, یسوع نے مانگنا سکھایا اور انہیں کہا کہ میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مانگو گے باپ تمہارے لیے کرے گا. آج کمی ہے ہمارے مانگنے میں جس کی وجہ سے ہمیں ملتا نہیں. آج کمی ہے کلیسیا کے اندر جس کی وجہ سے کچھ ایسی برکتیں ہیں جو رکی ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کو ملے. یہ کہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. کئی دفعہ لوگ مانگنا سیکھ جاتے ہیں, وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب انہیں برکت نہیں ملتی وہ تھک کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. پہلی کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے جو مانگتے نہیں ہیں. دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ مانگتے تو ہیں لیکن جب ملتا نہیں تو وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. بائبل مقدس کے ایک ترجمہ میں نے پڑھا کہ مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا. ہماری بائبل مقدس میں لکھے ہیں مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ایک اسکالر اس کی یوں تشریح کرتا ہے کہ مانگتے رہو گے تو تم کو دیا جائے گا, یعنی کہ ہم نے اکنا نہیں ہے, ہم نے تھکنا نہیں ہے, ہم نے پریشان نہیں ہونا. جب ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں بیسیکلی اس وقت ہم یسوع کے ہاتھ کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوا, اور جو ہمارا ایکٹ کردار ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یسوع کا ہاتھ ہی چھوٹا ہے, اس لیے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن تیسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں, انہیں ملے یا نہ ملے. وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مسیح کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں ضرور جیزس کرے گا, کیونکہ جیزس کے ہاتھ بائبل مقدس سکھاتی ہے بہت بڑے. دیکھیں بڑا طوفان آ گیا, کشتی میں شاگرد تھے اور شاگردوں کے ٹیچر ہمارے بادشاہ یسوع بھی اس کشتی میں موجود تھے. اور جب سمندر میں بڑا طوفان آیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیزس نے
पहले उन्होंने कोशिश की शागिर्दों ने उस तूफान को रोकने की, लेकिन बेसिकली वो तूफान मस्सा के सबब से रुकना था। और उन्होंने फिर यीशु को जगाया, बार बार जगाया। जीसस उठे, जीसस ने उस तूफान को, बाइबल में लिखा है कि झिड़का, हाथ बढ़ाकर झिड़का। उसी लम्हा बाइबल मुकद्दस सिखाती है तूफान साकन हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब है जीसस के हाथों के अंदर बड़ी पावर पाई जाती है। हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम शायद सोच भी वहां तक नहीं सकते जितनी कुव्वत, जितनी ताकत यीशु के हाथों में। एक इंसान के अंदर जिस्मानी ताकत है, वो समझते हैं मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ, वो कितने लोगों के साथ एक टाइम में झगड़ा कर सकते हैं? 10 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ। समसून के ताल्लुक से लिखा है उसने गधे के जबड़े की हड्डी के साथ 1000 लोगों को मारा। लेकिन इससे ज़्यादा हमारी विल पावर काम नहीं करती। और जीसस के ताल्लुक से लिखा है कि जीसस ने सारी दुनिया को अपने हाथों में संभाले हुए है। हर रोज़ जीसस अपने हाथों से आपको और मुझे संभालते हैं। इसका मतलब है जीसस के हाथ बहुत बड़े हैं, और जीसस के हाथों पर जब हम इन्हिसार करते हैं फिर हम कभी रुकते नहीं हैं, फिर नॉन स्टॉप मांगते रहते हैं। आज बेसिकली मेरे दिल में खुदाए पाक ने ये डाला कि कुछ ऐसी भी जिंदगियां हैं जिन्होंने 2025 के आगाज में, इस साल के आगाज में बड़े जोशीले तरीके के साथ दुआ करना शुरू की, चर्च जाना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी वो ठंडे हो चुके हैं। अभी वो जोश से प्रेयर नहीं करके, वो समझते शायद ये 3 माह गुजर चुके हैं, 3.5 माह गुजर चुके हैं, इनमें हमारा मसला नहीं हल हुआ, तो शायद हमारे हालात ऐसे ही रहने हैं। और ये नेगेटिव सोच की स्पिरिट जैसे हमारे अंदर आती है, हमारे हालात नहीं बदलते। लेकिन जब आप और मैं, हम डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, एक वक्त आता है खुदा हमें सुरखरू करता है, आज़ाद करता है, रिहाई बख्शता है, छुटकारा बख्शता है, हमें आज़ादी मिल जाती है। याद रखिए, बड़ी गौर से सुनिएगा, इंसान जो गुनाह की हालत में पैदा होता है, बेसिकली गुनाह की हालत में जब इंसान की पैदाइश होती है, स्पिरिट्स उसी वक्त ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और ब्लड से, खून से बदरूहें जो हैं, स्पिरिट्स जो हैं, वो खून की स्मेल से बड़ा प्यार करती हैं। जो खून है हमारी बॉडी के अंदर, इससे हमारी ज़िंदगी कायम रहती है। अगर ब्लड हमारे अंदर से निकाल दिया जाए तो लोगों की डेथ हो जाती है। बल्कि ब्लड की कमी जो ही होना शुरू होती है, हमारी बॉडी में मसल्स प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर से जो कुव्वत मदाफत है, बर्दाश्त करने की कुव्वत, वो कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सारा खून निकाल दें तो हार्ट चाहे जितना मर्जी मजबूत है, इंसान की डेथ हो जाती है। और बॉडी का एक ख़ास जो हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड है, ब्लड, उससे अबलीसी तस्वीरें किसी भी किस्म की हो, वो बड़ा प्यार करती है, उन्हें अच्छा लगता है खून के अंदर रहना। और बेबी जब पैदा होता है, जब पैदाइश किसी बच्चे की होती है, उसके अंदर भी ब्लड होता है। और जो अनाइंटिंग पर्सन नहीं होते, ऐसे लोग जो रूहानी नहीं होते, जो पेरेंट्स रूहानी नहीं है, फिजा रूहानी नहीं है, जिस जगह पर पैदाइश हुई है वहाँ पर आप प्रेयर नहीं कर रहे, मस्सा फिजा के अंदर नहीं है, जो ही बेबी पैदा होता है उसी लम्हा अगर तो उस फिजा के अंदर मस्सा नहीं, चाहे वो हॉस्पिटल है या घर है, कोई भी जगह है, अगर आप प्रेयर करते हैं तो उसी लम्हा खुदा हॉस्पिटल की फिजा को भी ब्लेस कर देता है। हर जगह जीसस मौजूद हो जाता है। ईमानदारों के लिए, सिर्फ ईमानदारों के लिए खुदा हर जगह पर मौजूद हो जाता है। हम लास्ट टाइम सीख रहे थे कि दानियल को शेरों की माद में डाला गया, और वहाँ पर मे भी स्मेल भी होगी क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर थे,
शेर जो है वो डेली नहाता नहीं है, कपड़े नहीं पहनता, वहाँ पर ही रहते थे, वहाँ पर ही खाते थे, वहाँ पर शेरों के लिए कोई बात नहीं था। वहाँ पर किस तरह का माहौल होगा? वो कोई नीट एंड क्लीन जगह नहीं थी। उन्होंने अगर सजा के लिए वो मार्ग बनाई थी, वहाँ पर बड़ी गंदगी होगी। और डैनियल की खातिर मसीहा उन शेरों के दरमियान में डैनियल के सामने खड़े हो जाता है। इसका मतलब है मसीह अपने लोगों से, अपने दुल्हन से बहुत प्यार करता है। मैं सोचता हूँ कई दफ़ा हमारे दुखों की गरमाइश हमें फील होती है कि दुख सानू साड़ देने। और सदरक मिसक अब्दुल को जब आग की जलती भट्टी में फेंका गया तो वहाँ पर भी बड़ी तपश थी। उस तपश के बावजूद मसीहा ने इंतखाब किया कि मैं अपने बेटों को बचाऊंगा। वहाँ पर भी बाइबल में लिखे इलाज़ादा, खुदा का बेटा, वहाँ पर भी जाहिर हुआ और अपने बंदों को बचाता है। ऐसी जिंदगियां, ऐसे लोग जो अंधाधुंध खुदा पर यकीन रखते हैं, उनकी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। आज मैं देखता हूँ कई दफ़ा मुझे खुदाए पाकू, जब मैं प्रेयर्स में होता हूँ रात को भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुदाए पाकू ने विजिट्स तो आए, मुल्कों के विजिट्स तो आए। काफ़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि कंट्रीज़ के अंदर खुदा मुझे लेकर जा रहा है। और एक रात से कोई बंदा दुनिया च ऐसा नहीं जेड़ा कोई 5-7 मुल्क को मिलवे है, और खुदा कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जा रहा है। और खुदा दिखा रहा है कि ऐ मेरे बेटे, यहाँ पर भी अंजील की ज़रूरत है। खुदा ने मुझे कल की बात है, गुजरी जो रात है, इंग्लैंड के अंदर मुझे खुदा उस वक्त विज़िट करवा रहा था। तो खुदा ने कहा कि यहाँ के जो चर्चेज़ है इनके अंदर बुराई होती है और यहाँ पर तारीकी का जोर है, पब्लिक कम है, यहाँ पर अब्लीस ने अड्डे ठिकाने जमाए हुए हैं। यहाँ पर भी मैं अपने खादम को इस्तेमाल करूँगा। रात को खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा था कि मैं इस जगह पर, ये पॉइंट्स है जहाँ पर तूने पाकीज़गी का मसला लेकर जाना है, तेरे वसीले मैं वहाँ पर जाऊँगा, मुझे वहाँ पर भी जाना है। मुझे अपने लोगों की फिक्र है। मेरे लोग तारीकी के अंदर दम ले रहे हैं, अंधेरे के अंदर दम ले रहे हैं। उन्होंने यीशु की कुव्वत को महसूस करना छोड़ दिया। तो याद रखें, जब इवल स्पिरिट्स किसी जगह पर नहीं गई होती, वो किसी अपने बंदे के थ्रू, जो शख्स जैसे एजिबल, बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, अखयब की बीवी, अखयब बादशाह था, उसकी बीवी एजिबल। अखयब यहूदी था और एजिबल एक नाहमवार जुआ था। अब्लीस ने प्लान किया कि अखयब एक बादशाह है, खुदा का मुकर्रर किया हुआ, और मैं इसकी सल्तनत को कैसे तबाह करूँगा। खुदा ने अखयब को तो चुना, लेकिन एजेबल का जो चुनाव था वो खुदा की तरफ से नहीं था। अब्लीस ने प्लान बनाया कि मैं अखयब की सल्तनत के अंदर कैसे जाऊँगा। उसने एजेबल, एक औरत का इंतखाब किया, वो बादशाह के सामने लाई गई, बादशाह की नज़रों में मकबूल हुई, बादशाह ने उससे शादी की और उसके थ्रू स्पिरिट्स, बदकारी के स्पिरिट्स, एजेबल स्पिरिट्स जिसे जो हम बोलते हैं, ये महल के अंदर भी दाखिल हो गई, अखयब की ज़िंदगी में भी दाखिल हो गई। आज भी ऐसे तारीकी से भरे लोग जब वो हमारे साथ मिल जाते हैं। आज एक और चीज़ अभी मेरे दिल में खुदा पाकरू ने डाली। आज यहाँ से जाने से पहले हम ये भी प्रेयर करेंगे कि खुदावंद हर वो रिश्ता, चाहे मुझे अजीज है या मेरे कितना भी क्लोज है, अगर वो तेरी तरफ से नहीं है, उस रिश्ते की वजह से मेरी बरकतें रुकी हुई हैं, तो मैं उस रिश्ते को यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट करता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, उसके ताल्लुक़ को। मैं कई दफ़ा ये प्रेयर करता हूँ, खुदावंद मुझे ऐसी भेड़ें दे, ऐसी कलीसिया दे जो कलाम की भूख अपने अंदर रखती है। कभी कोई ऐसा शख्स यहाँ पर ना आए, उसके हाथ का बीज हदिया यहाँ पर ना आए जो इस मस्सा के फिजा को डिस्टर्ब करे। ऐसा भी हो जाता है। अखयब बड़ा सुकून में था, उसे एजेबल की सूरत में बीवी मिल गई जो बदकार थी। उसने सारे यरूशलेम को तबाह कर दिया अपनी तस्वीरों से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सल्तनत के ऊपर अटैक किया, और वो तस्वीरें पहले महल में नहीं गई थी, वो ब्लड के अंदर, एजेबल के ब्लड के अंदर थी। एजेबल जहां जहां कदम रखती, तस्वीरें भी साथ साथ जाती। और एक और चीज है, मस्सा से भरे लोग भी,
मुझे खुदा पाक ने कई साल पहले ये बताया कि मेरे जो चुने हुए खादम हैं, कई दफा उनमें होकर मैं ऐसी जगहों पर भी चले जाता हूँ जहाँ पर सालों साल में नहीं गया होता, और मेरे अंदर विश होती है कि मैं वहाँ पर जाकर भी बड़े बड़े काम करूँ। देखिए, अगर एक मस्सा से भरी हुई बेटी वो किसी पोजेस्ड जगह पर जाएगी तो उसके साथ खुदा पाकरू भी वहाँ पर जाएगा, और खुदा पाकरू को वो तारीकी वहाँ पर नहीं आने देती, क्योंकि तारीकी का राज है। और जब ईमानदारों के थ्रू खुदा पाकरू वहाँ पर जाकर काम करते हैं, खुदा पाकरू बहुत खुश होता है उस बेटे के पर कि इसके वसीले आज वो तारीक जो जगह थी वो भी नूरिश हो चुकी है। स्टार्ट में मैंने बोला कि ब्लड की जो खुशबू है, हमारे खून की खुशबू, ये अब्लीस को बड़ी पसंद है। अब्लीसी तस्वीरें खून के अंदर रहती हैं और मूव करती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। अगर सारे चैप्टर को पढ़े तो हमें मिलते हैं कि खुदा ने पानियों को जुदा किया और खुश्की पैदा की, और ज़मीन पर अभी भी 75% पानी ही पानी है, और सिर्फ 24-26% इन हिस्सों में इतना से सिर्फ एरिया जो है वो खुश्की का है जहाँ पर ज़िंदगी आबाद है, और 75% जो है वो पानी ही पानी है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पानी की भी स्पिरिट्स होती है जो पानियों के अंदर रहती है। 75% पानी अगर 25% सिर्फ खुश्की है तो कितनी स्पिरिट्स हैं जो पानियों के अंदर काम करती है। और हमारी बॉडी में सिस्टर जी कितने फीसद पानी है, किसी को पता है? 75%, और दुनिया के अंदर भी 75% पानी है। और जो पानी की स्पिरिट्स हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसमें रहना शुरू कर देती है, बड़ा खुश रहती है, और वो खानदानी कर्सेस बन जाती है। जैसे मैंने स्टार्ट लिया कि जो ही पैदाइश होती है, कल भी एक शख्स चर्च में आया था तो उसके साथ भी यही डिस्कस हो रही थी। और अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्पिरिट्स हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के पानी के अंदर रहना शुरू हो जाती हैं, वो स्पिरिट्स हमारी जिंदगी के अंदर डेरे लगा लेती हैं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो बाइबल को बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर स्पिरिट्स हैं, बैड स्पिरिट्स हैं, बुरी रूही उनके अंदर पाई जाती है। कलाम को वो बहुत पढ़ते हैं। आज याद रखें, आप जितनी मर्जी वर्शिप कर लें, जितनी मर्जी प्रेयर कर लें, जितना मर्जी कलाम पढ़ लें, अगर मस्सा नहीं ठहर रहा, अगर मस्सा नहीं आ रहा, तो स्पिरिट्स कभी भी बॉडी से बाहर नहीं जाए। अगर वो बॉडी के अंदर रहती है, ब्लड के अंदर रहती है, बॉडी के पानी के अंदर रहती हैं, वो तभी निकलेंगी जब आप मस्सा को मांगेंगे, क्योंकि मस्सा के बगैर स्पिरिट्स नहीं भाग सकती। कुछ बदरूहों के ऐसे लेवल्स भी हैं कि यीशु का नाम जब लेते हैं या मस्सा की फिजा में आते हैं या वर्शिप करते हैं तो वो दौड़ जाती है, लेकिन जो डीठ बदरूही होती है उनके लिए मुसलसल लगातार मस्सा को मांगना बड़ा जरूरी है। आज घर जकड़े हुए हैं, घर की फिजा पोजेस्ड है, हम उसी में सांस लेते हैं, उसी में हम सोते हैं, उसी में उस तारीकी की बड़ी फिजा में हम रहते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। हम कह रहे हैं कि हमें डेली रोटी मिल रही है, हमें अपना घर मिला हुआ है, बिल्स के लिए पैसे खुदा प्रोवाइड कर देते हैं, इतना ही काफ़ी है, लेकिन हम रूह की तरफ गौर नहीं करते। हमारे अंदर रूह है, स्पिरिट है, खुदा ने दम फूंका है हमारे अंदर। देखिए, जब कोई शख्स, किसी की डेथ हो जाती है, कोई शख्स मर जाता है, तो मोस्टली हम देखते हैं कि बॉडी जब पड़ी होती है, बॉडी के साथ हाथ भी होते हैं, पाँव भी होते हैं। जब आप किसी शख्स का चेहरा देखते हैं, कोशिश किया करें, परहेज़ किया करें चेहरे देखने से। जब चेहरा किसी, लोग कहते हैं आओ ज़रा मुँह देख लिए,
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅਬਲੀਸੀ ਤਸੀਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, तो फिर कई दिन सानू वो चेहरा नज़र आता रहता है। ऐसा होता है ना, कई दिन सानू साड़ी अखा तो दूर नहीं चेहरा जाता। एक रूहानी शख्स नहीं है, अगर उसकी गुनाह में डेथ हो चुकी है, जब आप उसके चेहरे को गौर से चेहरे में बजी वेखे की करना आप दसो जरा। कई दफा लोग कहते हैं चलो जाते जाते आखिरी दफा चेहरा वेख लो, तो तुसीं जिहड़ा उस तो पहले 110 दफा वेखिया सी, उस तो पहले कोई 1000 के दफा वेखिया सी, वो तुसीं भुल गए। आखिरी दफा देखना क्यों जरूरी? कहाँ इससे ये रस्म आ गई? इससे भी स्पिरिट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आंखों के जरिए हम देख रहे होते गौर से, और आंखों, हाँ एक ईमानदार शख्स, एक ईमानदार खादम, बड़ी उसने खिदमत की, यीशु की हजूरी में टाइम गुजारा, जब वो सो जाता है तो जब हम उसके चेहरे का दीदार करते हैं तो हमें लास्ट मोमेंट्स के ऊपर भी मसा ही मिलता है। उसे छूना, उस बॉडी को छूना, उसे देखना, वो मुबारक बात है। और जो बॉडी पड़ी होती है, अगर तो तंदुरुस्ती की हालत में उस शख्स की डेथ हुई है तो उसके हाथ भी वहाँ पर सलामत होते हैं, पाँव भी सलामत होते हैं, नोज भी सिस्टर जी होते हैं, आइज भी कईयों की खुली होती, कईयों की बंद होती, कान भी होते हैं, बाल भी होते हैं, सारा कुछ बॉडी के सारे अज़ा कंप्लीट होती हैं, लेकिन वो बॉडी हरकत नहीं कर रही होती, फंक्शन नहीं कर रही होती। क्या बात है? बॉडी के अंदर अज़ा कंप्लीट है, बल्कि उसके अंदर के अज़ा भी कंप्लीट ही होती हैं। तंदुरुस्ती की हालत में जिसकी डेथ होती है, हार्ट भी ठीक होता है, किडनी सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों मूवमेंट्स बॉडी नहीं करती, बॉडी कोई फंक्शन नहीं कर रही? क्योंकि उसके अंदर से दम निकल चुका है। दम को समझना बड़ा जरूरी है। जो शख्स अपने स्पिरिट को समझ जाता है, अपने ज़मीर को समझ जाता है, अपने बातिन को समझ जाता है, याद रखें वो शख्स इब्लीस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। आज दुनिया के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी के अंदर डेली स्पिरिट्स रहती हैं, और कुछ को पता है, कुछ को पता ही नहीं होता। और इब्लीस का याद रखें एक बहुत जो खास प्लान है, वो चाहता है कि हर रूह जो है वो मेरे कब्जे में आ जाए। जो ही किसी के डेथ हो वो स्पिरिट मेरी बन जाए, वो मेरी बन जाए। और ये ऐसा है भी, जिस रूह को इब्लीस गुनाह में मार देता है, या जो शख्स गुनाह में मर जाता है, उसे तौबा के बड़े मौके मिले, लेकिन वो गुनाह में मर गया, उस रूह को इब्लीस उसी लम्हा अपने लश्कर में मिला लेता है। और वो शख्स अपनी जिस्मानी जिंदगी में जो गुनाह करता था, इब्लीस फिर कहता है कि तूने 70 साल, 60 साल, 30 साल, 25 साल, 20 साल, 21 साल, 40 साल तूने ये गुनाह किया, अब तू मेरी ग्रोह में है, अब तूने यही वर्क करना है। कुछ लोगों को बड़ी बुरी आदत होती है, वो बात बात पर झूठ बोलते हैं। खाना खाया नहीं, पैसा मैं खाना नहीं खाता, तो करो 2 पराठे खा के तो पैसा ने तंदूर लाया था जी। कई दफा जी पहना आ गया जी, मिसिस सन प्लीज सर अंदर है, आज कोई बात। कई दफा लोग हाँ जी तुसी दुआ की थी, पैसा मैं दुआ की थी, दुआ उन्होंने की थी, कोई 2 महीने गुजर गए होंगे ने, उदों दी भुली नहीं हाले तक दुआ 2 महीने पहले दी ना। लोग उससे बातों बातों में, कई दफा लोग किसी से मिलेंगे ना, खुरम भाई कभी नोट कीजिएगा, किसी से मिलेंगे की हाल है ताड़ा, ताड़ियां दुआवां ने, उन्हें भावें कदी दुआ ना की हो जी। बकास भाई ऐसा लोग कहते हैं की हाल है ताड़ा, और ताड़ियां दुआवां ने, तो मैनू भी कहे ना, तो जिहदे वास्ते मैं दुआ ना की तो मैं नहीं कदी कहता, मैनू पूछते